So hello and good morning everyone. So this is basically the second series on the chapter reproduction. First series में मैंने discuss किया था about the types of asexual reproduction. I hope you have seen that particular series. If not, then please watch that series and then come back to this particular series. Okay, so उसमें मैंने different types of asexual reproduction discuss किया था and today I will be discussing about the sexual reproduction. Before that, I will also discuss one of the basic important thing in the asexual reproduction is tissue culture. Tissue culture का मतलब क्या होता है? You are developing new plants. आप new plants develop कर रहे हो किससे? Cells और tissues से. अगर एक प्लांट है उसके आपने कुछ सेल्स लिए आपने उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया अंडर एसेप्टिक कंडीशंस. एसेप्टिक कंडीशंस मींस फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस फंजाई एक्सेट्रा. ठीक है, और या फिर उसको स्टरलाइज किया हुआ है आपने प्रॉपर तरीके से. So that is under the aseptic conditions. फिर क्या होगा जब सेल्स और टिश्यूज को आप एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देंगे तो आफ्टर सम टाइम इट विल डेवलप मास ऑफ सेल्स जिसको कैलस बोलते हैं. फिर आप उस कैलस को उठाओगे. मास ऑफ सेल्स, कैलस इज नथिंग बट द मास ऑफ सेल्स. ओके, फिर आप उस कैलस को उठाओगे और ट्रांसफर करोगे दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में जहां पे वो एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज अ टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर से मतलब पता चल रहा है फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड दैट you are growing a new plant, you are growing the replica of the same plant into a new plant, right? And you are growing it with the help of cells and tissues of the same plant. Understand? So this is also one of the important thing under asexual reproduction which is called as tissue culture. Okay, today now let's talk about the sexual reproduction. और sexual reproduction में सबसे पहले आज मैं बात करूंगी sexual reproduction in the flowering plants. See, whenever we discuss about sexual reproduction, it means there are two sex organs which are involved. One is male, other is female, right? So the involvement of two different sexes, one is of male and one is of female, that is called as a sexual reproduction. So male organism, they have male sex organs, they produces the gametes, that is called as sperms, right? Sperms which are small, they are motile. Okay, and female organism, they have female sex organs, they produces ova or egg which are generally large as compared to the sperms and they store food and they are non-motile. तो क्या होता है कि मेल एंड फीमेल gametes they fuse together. ठीक है, सो मेल को आप जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हो साइंटिफिकली, सॉरी नॉट इन दिस वे, थोड़ा गलत बन गया, ऐसे इसके ऊपर एक एरो होता है, और फीमेल को आप जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? ऐसे. सो दे मेल एंड फीमेल व्हाट दे विल डू, दे विल प्रोड्यूसेस, they will fuse together, they will form zygote. Zygote will grow into an individual. ठीक है, उसकी कई सारी stages होती हैं, that we will study about those stages in detail in this particular series. Okay, now let's talk about the sexual reproduction in the flowering plants. The reproductive parts are present in the flower. आपको पता है जैसे आपके हाथ में एक फ्लावर आएगा तो there are certain parts of the flower. अभी मेरे पास फ्लावर नहीं है. The best flower to describe is the hibiscus flower. It's a bisexual flower. I'll tell you about bisexual and unisexual flower also. Bisexual का मतलब होता है कि male and female are present in the same flower. Okay, तो उसमें क्या होता है आपको easily आप differentiate कर पाते हो. अभी मेरे पास एक hibiscus का plant नहीं है, ठीक है, तो अभी मैं आपको नहीं समझा सकती plants दिखा के, एक फ्लावर दिखा के, लेकिन डेफिनेटली आई विल ब्रिंग वन फ्लावर, हिबिस्कस फ्लावर, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि सेपल्स क्या होते हैं, पेटल्स क्या होते हैं, स्टेमन्स क्या होते हैं, कार्पल्स क्या होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल. अभी मैं ऐसे ही बता देती हूँ. जब भी मैं सेपल्स की बात करती हूँ, दे आर द ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स. जो ग्रीन कलर का आपको दिखता है, दे आर द सेपल्स. उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? दे प्रोटेक्ट द इनर प्लांट्स. जो अंदर के पार्ट्स होते हैं, अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसको वो प्रोटेक्ट करके रखता है. अगर आप एक फ्लावर देखोगे तो उसमें जो ग्रीन कलर का होता है दैट इज बेसिकली द सेपल. ओके, देन जो कलरफुल पार्ट होता है, कलरफुल जो पार्ट होता है, दैट आर पेटल्स. पेटल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, राइट? फिर एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. व्हेन आई टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज स्टेमन. स्टेमन, अब उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिलामेंट, एक होता है एंथर. फिलामेंट का मतलब होता है स्टॉक, राइट? एंथर का मतलब जो ऊपर का स्वेलन टॉप पार्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज बेसिकली द एंथर. ठीक है, आई विल शो यू ऑल द पार्ट्स इन द डायग्राम.
नाउ सी दिस इज हाउ अ फ्लावर लुक लाइक. ये बेसिकली एक हिबिस्कस का फ्लावर है जो कि एक बाइसेक्शुअल फ्लावर है. इट मींस यू कैन सी बोथ द मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर, राइट. सो हियर यू कैन सी ये जो होता है सेपल्स, आई टॉक्ड अबाउट सेपल्स, ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है दैट आर सेपल्स. इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर. इनर पार्ट में क्या हो जाता है? जैसे कि पेटल्स आ जाते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट पेटल्स, मतलब कलरफुल पार्ट जो होता है दैट इज जो रेड, जैसे कि रोज में रेड कलर का होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, हिबिस्कस में भी रेड कलर का होता है. सो कलरफुल पार्ट होता है. इसका बेसिक फंक्शन होता है कलर्स की वजह से व्हाट इट हेल्प इज, इट हेल्प टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स which help in pollination, right? So one is the male reproductive organ that is called as stamen. आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, MEN मतलब man, male reproductive organ. इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट, फिलामेंट इज नथिंग बट दिस वन इज द फिलामेंट. ये स्टॉक होता है, इसको फिलामेंट कहते हैं. और ये होता है एंथर. एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, राइट. नाउ दिस इज पिस्टल, इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट स्टिग्मा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है दैट इज स्टिग्मा, जहां पे जो कि स्टिकी, इट इज स्टिकी इन नेचर, जहां पे पोलन ग्रेन्स क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स मतलब पोलन ग्रेन्स आएंगे एंड इट विल अटैच, and pollen grains will attaches itself on the stigma because stigma is a sticky portion of the female reproductive organ. Then through this style it will travel into this ovary. Ovary is nothing but the swollen structure. Ovary contains ovules. Ovary के अंदर बहुत सारे ovules होते हैं, right? So basically this is the female reproductive organ. Now which is also called as pistil, is also called as carpel. Carpel भी बोलते हैं इसको. It is the female reproductive part and produces ovules. मैंने आपको बताया ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गेमीट्स होते हैं. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, अभी मैंने आपको डिस्कस किया. स्टिग्मा स्टिकी पार्ट होता है which receives the pollen grains for pollination. Then there is this middle portion which is the style, जो बेसिकली क्या होता है, वहां से जितने भी पोलन ग्रेन्स होते हैं they travel through the style because it is a middle portion, right? It is a stalk kind of thing and it will enter into the ovary. ओवरी क्या होता है? नथिंग बट द swollen part which contains the ovules. अब ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं? It contains female gametes. Female gametes मतलब they have an egg cell. Okay, so this is how the carpel or the pistil look like. See, this is stigma, style, ovary. Ovary contains ovules, right? Now this is how the male reproductive organ look like. Stamen. Stamen matlab 2 parts. One is this is the filament and this is the anther. Anther contains pollen grains. It constitutes stamen, right? Now I told you the flower may be bisexual or unisexual. सबसे जो easiest example that you have to remember of the bisexual flower is जिसके अंदर male और female reproductive organs दोनों present होते हैं. और सबसे अच्छा example है उसका hibiscus. इसको साइंटिफिक इसका नेम है मस्टर्ड चाइना रोज, राइट. यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है. एग्जांपल यू हैव टू रिमेंबर एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न, स्टिक टू all the examples, learn all the examples, at least 2 or 3 examples you should know, okay? Because while you're writing or explaining something, if you're explaining it with the help of examples, then the thing become more authentic, okay? And another thing is called as a pollination. Pollination का मतलब क्या होता है? Pollination का मतलब होता है the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the flower, right? Anther is the male reproductive organ. We know that anther contain pollen grains. So transfer of pollen grains from the male reproductive organ to the stigma. Stigma we know is the female reproductive organ of the flower. So the transfer of pollen grains from the male reproductive organ to the female reproductive organ, that is called as a pollination. Now there are 2 types of pollination. 2 तरह के होते हैं pollination. एक होता है self pollination, एक होता है cross pollination. From the word itself you can understand. Self का मतलब होता है अपने आप में, यानी कि अगर pollen grain transfer हो रहा है from the anther से stigma में जाएगा, male से female में जाएगा of the same flower, like hibiscus का flower अगर मैं बोलूं, so that is self pollination, right? या फिर another flower of the same plant, मतलब plant same है लेकिन flower 2 अलग अलग हैं, तो ये self है. क्रॉस का मतलब क्या है? इसका ऑपोजिट, मतलब डिफरेंट प्लांट में जा रहा है. एक फ्लावर एक प्लांट का है, दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट का है, बट स्पीशीज आर सेम, स्पीशीज सेम है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. अब क्रॉस पॉलिनेशन किसके हेल्प से होता है? इंसेक्ट की हेल्प से, बर्ड्स की हेल्प से, विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, ठीक है. तो ये दोनों तरह के पॉलिनेशन किसी एजेंट के हेल्प से होते हैं, लाइक इंसेक्ट, बर्ड्स, विंड, वाटर. दिस इज हाउ क्रॉस पॉलिनेशन टेक प्लेस. सी, ये एंथर है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाएगा. सो मे बी डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज. ये एक प्लांट का एक फ्लावर है, ये दूसरे प्लांट का एक फ्लावर है, तो डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है, डिफरेंट प्लांट्स में हो रहा है.
राइट, दैट इज क्रॉस। अगर सपोज ये एक प्लांट है और यहीं पे एक और फ्लावर है इसका, तो अगर ये इसके बीच में हो रहा है दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, या विद इन द सेम फ्लावर हो रहा है, लाइक हिबिस्कस में हो सकता है, जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैं उसमें हो सकता है, बाइसेक्सुअल प्लांट्स में हो सकता है, सो दैट इज ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? जब फ्यूजन हो चुका है मेल और फीमेल गमीट्स का, देन दे विल फॉर्म अ जायगोट, वो एक जायगोट बनाएंगे। सो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज द इवेंट्स आर पोलन ग्रेन्स। सबसे पहले क्या होता है? पोलन ग्रेन्स जो होते हैं दे विल लैंड ऑन द, पोलन ग्रेन्स कहां प्रेजेंट होते हैं? एंथर के ऊपर। आई टोल्ड यू एंथर क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। स्टेमन का एक पार्ट होता है एंथर, एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या करेगा? वो स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, दैट इज पॉलिनेशन। स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फिर वो स्टिग्मा से स्टाइल के पास एंटर करेगा, स्टाइल से वो ओवरी में एंटर करेगा, ओवरी के पास इट कंटेन्स ओव्यूल्स और द फीमेल गेमीट्स। नाउ पोलन ग्रेन जब लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर, तो वहां से वो पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब बना लेगा, ठीक है, पोलन ट्यूब, जिसके थ्रू वो स्टाइल में पोलन ट्यूब्स की हेल्प से इट विल एंटर इनटू द स्टाइल एंड इट विल रीच द ओवरी, राइट। वो ओवरी के अंदर एंटर करेगा थ्रू द माइक्रोपाइल। नाउ वी नो दैट पोलन ट्यूब के पास दो मेल जर्म सेल होते हैं, राइट। अगर मैं ओव्यूल की बात करूं, अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं, तो उसके पास दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं फीमेल के पास। फीमेल की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, फीमेल जर्म, फीमेल या ओव्यूल की मैं बात कर रही हूँ, दे हैव टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन जर्म सेल, राइट। और मेल की अगर मैं बात करूं, पोलन ट्यूब के पास क्या होते हैं? मेल के पास क्या होते हैं? मेल के पास होते हैं दो जर्म सेल। मेल के पास क्या होते हैं? दो जर्म सेल, राइट। अब क्या होगा? वन ऑफ द मेल जर्म सेल, पोलन ट्यूब, वन ऑफ द मेल जर्म सेल, एक इनमें से जो मेल जर्म सेल होगा वो एक फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा, राइट। एक मेल जर्म सेल किसके साथ फ्यूज कर जाएगा? एक फीमेल जर्म सेल के साथ, एंड दे विल फॉर्म जायगोट, ठीक है। तो एक मेल जर्म सेल यहां से एक फीमेल जर्म सेल के साथ इट विल फ्यूज एंड इट विल फॉर्म जायगोट, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सिनगेमी। इस फ्यूजन को बोला जाता है सिनगेमी, राइट। अब other male germ cell, there are two male germ cell, other male germ cell will fuse with this two polar nuclei of the female gamete, right. And क्योंकि यहाँ पे one germ cell this and two polar nuclei, so that is also called as a triple fusion. This process is called as triple fusion. So you know, flowering, in the flowering plants, two fusion take place during fertilization and therefore it is called as double fertilization. आपको समझ में आया? Triple fusion take place and this whole process is called as double fertilization. Again I'm going to explain you, one is the female germ cell, one is the female gamete, other is the male gamete. Now when I talk about the female gamete, they contains two polar nuclei and one germ cell, right, one germ cell. And when I talk about the male gamete, they contain two germ cell. So one germ cell will fuse with the one female germ cell and they will produces, the fusion will take place and they will produce a zygote and this particular fusion is called as syngamy. अब एक जो दूसरा जर्म सेल बचा था वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और वहां पे ट्रिपल फ्यूजन इसको बोलते हैं। अब बिकॉज यहाँ पे दो तरह के fertilization is taking place, one is triple fusion and another one is syngamy, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं double fertilization. So double fertilization take place in the flowering plants. I hope you understood this. This is very very important as far as board exams are concerned. This is the fertilization in the flowering plants. This is pollen grain. अब देखो मैंने आपको बताया पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, जब एंथर से स्टिग्मा में आ जाता है पोलन ग्रेन। सो पोलन ग्रेन्स क्या करेगा? पोलन ट्यूब में, ये एक तरह का पोलन ट्यूब है, ये डेवलप हो जाएगा, ये स्टाइल के थ्रू एंटर करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, वो ओवरी में एंटर कर जाएगा। अब आपको पता है कि ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, फीमेल जर्म सेल्स होते हैं वहां पे। सो देयर आर टू फीमेल जर्म सेल, वहां पे क्या होते हैं? फीमेल जर्म सेल्स होते हैं। अब फीमेल गेमीट्स होते हैं तो वहां पे दो पोलर न्यूक्लियाई होता है और एक होता है एक होता है क्या? जर्म सेल। वन इज जर्म सेल। So what will happen? I'm sorry. अब पोलन ग्रेन्स के पास क्या होते हैं, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके पास दो जर्म सेल्स होते हैं। तो एक जर्म सेल एक फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज करेगा, इट विल फॉर्म सिनगेमी, एंड अनदर male germ cell will fuse with the two polar nuclei of the female gametes and it will form triple fusion. So there are two fertilization events which are taking place there, that is why it is called as a double fertilization. So it is very much common in case of flowering plants. Now what are the post fertilization events that take place? fertilization के बाद क्या होता है? अब देखो सबसे पहले जायगोट बना,
जाइगोट पहले फ्यूजन हुआ मेल एंड फीमेल गेमीट्स का, फ्यूजन के बाद क्या हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, zygote will divide several times and it will form embryo inside the ovule. zygote embryo में convert हो जाएगा. अब ovule हमेशा याद रखना, ovule will always develop into seeds. ovule हमेशा seeds में develop करेगा, right? ovary हमेशा किस में develop करेगा, fruit में. ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द बोर्ड एग्जाम्स एंड आल्सो इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो ओव्यूल विल डेवलप इनटू द सीड एंड ओवरी विल डेवलप इनटू द फ्रूट्स. व्हाट विल हैपन टू द सेपल्स पेटल्स, दे विल fall off, right? Now when I talk about the seed and its part, तो सीड का एडवांटेज क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्यूचर प्लांट को. फ्यूचर प्लांट क्या है, नथिंग बट द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, हमेशा याद रखना. वन एम्ब्रियो, बेसिकली देखो सीड की अगर मैं बात करूं तो सीड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एम्ब्रियो, एक होता है कॉटिलिडन. ठीक है, एक होता है एम्ब्रियो और एक होता है कॉटिलिडन. कॉटिलिडन का क्या फंक्शन होता है, कॉटिलिडन का कुछ नहीं होता, स्टोर करता है फूड. ठीक है, एम्ब्रियो फ्यूचर प्लांट है, वो डेवलप करेगा दो पार्ट्स में, वन इज प्ल्यूमूल, वन इज रेडिकल. सो प्ल्यूमूल विल डेवलप इनटू द शूट एंड रेडिकल विल डेवलप इनटू द रूट. दैट इज इट. सो आई होप यू अंडरस्टूड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. सीड्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है, वो प्रोटेक्ट करता है फ्यूचर प्लांट को, दैट इज एम्ब्रियो. सीड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉटिलिडन, एक होता है एम्ब्रियो. कॉटिलिडन जो होता है उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, स्टोर द फूड, स्टोरिंग फूड, right? And embryo, again there are two parts of embryo, one is the plumule, another one is the radicle. Plumule will develop into the shoots and radicle will develop into the roots. So this whole process of development of a seedling, एक seedling develop होता है from the embryo under appropriate conditions, that is called as a germination. Okay, so this is the definition of germination. I hope you understood this particular video. अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, then please write in the comment section below. This is very very important as far as board exams are concerned. So please listen to this particular video several times. तो मैंने आपका reproduction में asexual reproduction cover कर दिया in the previous series. Here I have covered the sexual reproduction in the flowering plants. So in the coming videos, I will be covering the sexual reproduction in human beings as well. So if you like my video, then please subscribe, share and comment. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Have a nice day.